جی اس وقت ہم F8 کچہری میں موجود ہیں اور یہ پیچھے آپ گاڑی دیکھ سکتے ہیں. اندر اپیرنٹلی ایک چہرے پہ انہوں نے کپڑا ڈالا ہوا ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ فواد چودھری صاحب اندر ہیں. لیکن یہاں پہ ابھی مرکزی قیادت بھی تھی, میں بھی تھوڑا آگے ہو کے دیکھ رہا تھا, تو لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ فواد چودھری صاحب نہیں ہیں اس میں, اور یہ کوئی ڈاج کر رہے ہیں یا پھر کوئی ایک بلف ہے اور فواد چودھری صاحب کو کسی اور راستے سے لے جایا جائے گا. اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ فواد چودھری ہے یا کلبھوشن یادو ہے جو اس طرح کپڑے ڈال کے آپ کو بلف کرنا پڑ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام, میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی. ناظرین کرام, میں اس وقت F8 کچہری کے باہر موجود ہوں اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ انتہائی تشویشناک ہے. ایک جانب تو فواد چودھری کو جس طریقے سے پیش کیا گیا, اس طرح کسی دہشت گرد کو بھی پیش نہیں کیا جاتا, اور یوں لگ رہا ہے کہ شہباز گل والے معاملے کا ایکشن ریپلے کیا جا رہا ہے. لیکن اب معاملہ یہاں پر رکنے والا نہیں ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے باضابطہ طور پر پوری پاکستانی قوم کو, تمام MNAs کو, تمام MPAs کو, تمام سینیٹرز, تمام عہدیداران کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ فوری طور پر زمان پارک پہنچیں. آج کی رات ایک بڑے آپریشن کی رات ہو سکتی ہے, لیکن اس سب کے اندر عمران خان نے سب کو لتاڑ کر رکھ دیا ہے. اور عمران خان نے نہ صرف اپنی گرفتاری کی پیشکش کی ہے بلکہ ایک خوفناک آپریشن کا آغاز ہو چکا ہے. اور یہ جو آپریشن کلین اپ ہے, جس میں پاکستان تحریک انصاف کا صفایا کیا جائے گا, PTI کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی طرف سے جو اس وقت منصوبہ سازوں کا منصوبہ ہے وہ تو یہ ہے کہ PTI کو ختم کیا جائے, PTI کی سیاسی قوت کو ملٹیپلائی بائی 0 کر دیا جائے. اور اس سب کے اندر جو ٹارگٹ نمبر 1 ہے وہ ظاہری بات ہے عمران خان ہے, کیونکہ عمران خان ہے تو PTI ہے, اور الٹیمیٹلی گول بھی یہی ہے کہ کپتان کی سیاست کو ختم کیا جائے. اب یہاں پر کچھ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے. سب سے پہلے تو لاہور ہائی کورٹ کی اور F8 کچہری کی اور جتنی اس وقت کی تازہ ترین ابھی تک کی ڈیولپمنٹس ہیں, کیونکہ ہم فیلڈ میں ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے مراد سعید میرے ساتھ موجود تھے اور حماد اظہر موجود تھے, پھر فواد چودھری صاحب کے جو بھائی ہیں ان کی اہلیہ وہ بھی F8 کچہری پہنچے. تو یہ جو سارا منظر ہے وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے, لاہور ہائی کورٹ میں کیا کچھ ہوا ہے, اور پھر F8 کچہری اسلام آباد میں کیا کچھ ہوا ہے, وہ احوال بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے. سب سے پہلے جو الارمنگ ڈیولپمنٹ ہے, ظاہری بات ہے پچھلے ویلاگ میں آپ کے سامنے یہ خبر رکھ چکا ہوں کہ نہ صرف عمران خان کے زمان پارک والی رہائش کا جانے والے اور آنے والے داخلی اور خارجی تمام تر راستوں کو سیل کیا جا رہا ہے, بلکہ اب اس خبر کی تصدیق بھی ہو گئی ہے اور کنٹینرز جو لگائے جا رہے ہیں راستوں کو, وہ تصاویر بھی منظر عام پر آ چکی ہیں. اب ایک جانب یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, وہیں دوسری جانب یہ خبر بھی ہم نے آپ کو دی ذرائع کے حوالے سے کہ مبینہ طور پہ مختلف شہر جو لاہور کے قریبی شہر ہیں وہاں سے پولیس کی مزید نفری بھی بلائی جا رہی ہے, اور ایک پورا سیل قائم کر دیا گیا ہے عمران خان کو فکس کرنے کا, جس کا مشن ہے عمران خان کو گرفتار کرنا ہی اصل ٹارگٹ ہے. اور ظاہری بات ہے مشن کیپچرنگ عمران جو ہے اس میں صرف عمران خان کی گرفتاری پھر نہیں کرنی ہوگی, اس میں پھر ساری لیڈرشپ اٹھانی ہوگی. اور فواد چودھری سے جو آغاز ہوا ہے یہ چیز اب بہت آگے بڑھ سکتی ہے. کل رات کو بھی خدشہ تھا عمران خان صاحب کی گرفتاری کا, صبح فواد چودھری کو گرفتار کر لیا گیا, لیکن اب اس سارے معاملے میں شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بڑا واضح 2 ٹوک, اور اس سے زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ قریشی صاحب ٹویٹ نہیں کر سکتے تھے. شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ میں بحیثیت وائس چیئرمین PTI تمام سینیٹر, سابق ممبران قومی اسمبلی, سابق ممبران صوبائی اسمبلی, پارٹی ورکرز اور سپورٹرز کو ہدایت کرتا ہوں کہ فل فور زمان پارک پہنچے. ان بزدلوں کو چیئرمین عمران خان تک پہنچنے کے لیے ہم سب سے گزر کر جانا ہوگا. اب یہ بات بڑی واضح ہے, بڑی 2 ٹوک انداز میں ہے کہ عمران خان تک پہنچنے کا اس وقت جو مشن ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے. اور اس سب کے اندر عمران خان صاحب نے بھی اپنی خاموشی توڑی ہے. عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے کہ میں جیل کے لیے مکمل طور پہ تیار بیٹھا ہوں. اب ہونا کیا ہے جو مجھے لگتا ہے, دیکھیں میں نے اس سے پہلے عوام کا جوش اور جذبہ وٹنس کیا ہے. پوری رات جو ہے وہ گزاری ہم نے 2 مرتبہ بنی گالا جب عمران خان صاحب کو گرفتار کرنا چاہ رہے تھے, اور اس وقت بھی جو صورتحال تھی وہ ایسی ہی تھی اور اسی قوت کے ساتھ آئے تھے گرفتار کرنے, لیکن بھاگ گئے. لیکن اس مرتبہ چونکہ الٹیمیٹلی فیصلہ ہو چکا ہے, ایون اس ٹائم پہ بھی یہ بھی اطلاعات آ رہی تھیں کہ عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے کوئی فضائی آپریشن نہ کر لیں, کیونکہ آس پاس بنی گالا کے سارے راستوں
रास्तों पे लोग थे। अब जमान पार्क है और कारकुन जो है वो वहाँ पर शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं, वो एक सेकंड के लिए भी नहीं जा रहे, और लोग अपने फैमिलीज़ को भी, बच्चों को, बूढ़े औरतें, जवान, बच्चे सब वहाँ पे पहुँचे हुए हैं इस ठिठुरती सर्दी में इमरान खान और अपना जो लीडर है उसकी हिफाजत के लिए। तो अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब की रिहाइशगाह बनी जो जमान पार्क है उसे सब जेल करार देके इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली जा सकती है। ये इम्कान भी इस वक्त रद्द नहीं किया जा सकता। अब कुछ डेवलपमेंट सुन लें, लेटेस्ट अपडेट सुन लें। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देने से इनकार करते हुए दरखास्त खारिज कर दी। इस हवाले से केस की समाअत करते हुए जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि यह केस तो अदालत में चैलेंज नहीं, हम 7-8 बजे तक तो बैठ सकते हैं लेकिन लाइन क्रॉस नहीं कर सकते। अब ये हिरासत तो गैर कानूनी नहीं है। इस सब के अंदर आईजी पंजाब जो हैं उन्होंने भी यहाँ पर आकर बताया और वो अदालत के रूबरू पेश हुए। इस मौके पर फवाद चौधरी के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को अदालत में नहीं लाया गया, उन्हें लाहौर की हदूद से ले जाया गया, सब टीवी चैनल्स पर चला, अदालत के हुक्म की हुक्म अदुली की गई। इस मौके पर आईजी पंजाब ने बड़ा दिलचस्प अपना जो डिफेंस में उन्होंने एक लॉजिक दी है। उन्होंने कहा है कि मोबाइल सिग्नल्स बहुत कमज़ोर थे इसलिए मुझसे राब्ता नहीं हो सका। मुझे पता चला कि फवाद चौधरी इस्लामाबाद पुलिस के पास हैं, अदालत के किसी हुक्म की अदुली नहीं की। मेरी कोशिश थी कि इस्लामाबाद पुलिस से राब्ता करूं, मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन पता चला कि वो इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। फवाद चौधरी पंजाब पुलिस की तहवील में नहीं है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि आईजी पंजाब सिग्नल्स नहीं है आईजी पंजाब के पास। ये कैसे हो सकता है? वो कौन से जंगलों में थे? आजकल तो जंगलों के अंदर भी सिग्नल, जाहिर बात है कवरेज हर जगह पर होती है मोबाइल फ़ोन की। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये तमाम तर चीज़ें जो हो रही हैं, अब इन सब में जो फवाद चौधरी साहब की एफिड कचहरी की पेशी है उसका अहवाल भी मैंने आपके सामने रखना है। जिस तरह मैंने आपको वीडियो भी दिखाई, मैं वहीं पर मौजूद था, अभी गाड़ी में आके आपके सामने डिटेल्स रख रहा हूँ वीलॉग के लिए। तो फवाद चौधरी साहब जो हैं उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई है और उन्हें बड़े अजीब से तरीके से पहले एक गाड़ी लाए, वो उसमें बंदे लाए, मुराद सईद, मैं और बाकी लोग भी वहीं पे मौजूद थे। अच्छा, उस गाड़ी का सबने रास्ता रोका देखने के लिए कि फवाद चौधरी ने पिछली सीट पे बंदा बिठाया, वो उसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ था और वो बंदा किसी सूरत भी जिसामत से फवाद चौधरी नहीं लग रहा था। तो ये एक तरह से उन्होंने ब्लफ मारा। फिर यहाँ तक इत्तलात आई कि सब लोग वहीं पे इकट्ठे हो गए जहाँ पे जिस जज की अदालत में पेश होना है। ज़राए के मुताबिक कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि वहाँ से जज साहब जो हैं उनके नाम की जो तख्तियाँ वो उतार के कहीं और लेके गए कि किसी दूसरे कमरे अदालत में, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, कचहरियाँ हैं, कोई ऊपर वाले फ्लोर पे अदालत है, किसी के नीचे है। अब यहाँ पर जो इस्लामाबाद की मकामी अदालत है उसने फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट नवीद खान ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया और इस सब के अंदर फवाद चौधरी पेशी के लिए कमरा अदालत जो है वो तब्दील किया गया, जिस तरह मैंने आपको बताया। और इस सब के अंदर रश होने और जगह तंग होने के बायस कमरा अदालत तब्दील किया गया, ये मौक़िफ़ अपनाया गया। मजिस्ट्रेट नवीद खान का कहना था कि कोर्ट रूम दूसरे फ्लोर पर है, मुश्किलात होंगी, शबीर भट्टी की अदालत ग्राउंड फ्लोर पर है, आसानी होगी। बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट नए कमरा अदालत पहुंचे और कहा कि किसी तरह फवाद चौधरी को कमरा अदालत में आने दें। वकील फैसल चौधरी ने गैर मुतल्लिका अफराद को कमरा अदालत से बाहर जाने की दरख्वास्त की और कहा कि फवाद चौधरी किधर है, गाड़ी किधर है, हम उन्हें लेके आते हैं। मजिस्ट्रेट ने रिमार्क्स दिए कि कमरा अदालत में जगह बनेगी तो फवाद को लेके आएंगे, कम लोग होंगे कोर्ट में तो उन्हें ले आएंगे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अदालत से उठकर अपने चैम्बर में वापस गए। बाद समाअत शुरू होने पर फवाद चौधरी को कमरा अदालत में हथकड़ियां लगाकर पेश किया गया और पीटीआई के वकला ने उनकी हथकड़ियां खोलने की भी इस्तदा की। दौरान समाअत जो तफ्तीशी अफसर है उसने फवाद चौधरी के 8 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की है। और जो वहाँ पे लोग थे, मैं आपको ये भी बता दूं कि फवाद की तकरीर के पीछे वकील इलेक्शन कमीशन जो है उनका कहना है कि फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन की हालत इस वक्त कहा कि मुंशी की है। इस पर फवाद चौधरी ने लुकमा दिया तो इलेक्शन कमीशन की हालत मुंशी की हुई। इस सब के अंदर अदालत ने फवाद चौधरी को वहाँ पे लुकमा देने से टोक दिया, यानी फवाद चौधरी जो है वो अभी भी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे। और इस सब के अंदर इलेक्शन कमीशन के वकील वही बातें कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, फवाद की तकरीर के पीछे मुहिम चल रही है, तमाम तर चीज़ें। और फवाद चौधरी जो है उनका अदालत में बयान जो है वो भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि मुकदमे में बगावत की दफ़ा भी लगा दी गई है, मेरे खिलाफ तो मुकदमा बनता ही नहीं, ऐसे तो जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी, कोई तनकीद नहीं कर पाएगा। अगर इलेक्शन कमीशन पर तनकीद नहीं कर सकते तो मतलब किसी पर तनकीद नहीं कर सकते। मुद्दई वकील का मतलब है कि तनकीद करना बगावत है। मैं तकरीर कर ही नहीं रहा था, मैं मीडिया टॉक कर रहा था, मेरी बातें गलत कोट
की गई हैं। और ये तमाम तर चीज़ें फवाद चौधरी साहब ज़ाहिर बात है ख़ुद भी लॉ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अच्छा, अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब अब जो चीज़ें हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल भी हो रही हैं। मैं आपको ये भी बता दूं, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं उन्होंने भी मुलाकात कर ली है। मुलाकात में इसहाक डार, अयाज सादिक, साद रफ़ीक और सेनेटर सलीम मांडवी वाला भी मौजूद थे। एलामिया के मुताबिक छोटा सा एलामिया है कि दोनों जो सियासी रहनुमा हैं उन्होंने मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर बातचीत की है। तो आप समझ सकते हैं क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई होंगी। और ये जो इस वक्त इमरान खान को माइनस करने का मिशन है और एक पूरा सेल बना लिया गया है, मिशन क्लीन अप जो है वो इस वक्त शुरू कर दिया गया है और अपनी तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का जो सफाया करने का मिशन है उस पर इस वक्त ये लोग गामजन हैं। अब यहाँ पर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के इम्कानात तो हैं और ये तमाम तर चीज़ें तो आपके सामने आ रही हैं, लेकिन सदर मुमलिकत जो हैं उनकी भी लाहौर आमद हुई है और वहाँ पर रूट के खुसूसी इंतजामात भी हुए हैं और गवर्नर हाउस भी वो गए। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि सदर आरिफ अलवी ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात के लिए भी पहुंचे। इस मौके पर ज़मान पार्क जाने वाला रास्ता माल रोड अंडरपास के करीब बंद भी किया गया और सदर मुमलिकत की इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई है। ये मुलाकात मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सदर का अभी भी बहुत ज़्यादा किरदार है। सदर के पास ऑर्डिनेंस जारी करके बहुत से फैसले लेने का इख्तियार भी होता है और इस वक्त मुल्क के अंदर जिस तरह से डायरेक्टली चीज़ें आपके सामने है कि जिस तरह से चल रही हैं। अब यहाँ पर इमरान खान साहब ने भी गुफ्तगू की है और पूरी कौम के सामने जो अपना मुकदमा है वो रखा है। इमरान खान ने कहा है कि मेरी आवाज़ बंद करने की कोशिश की जा रही है, मुझे जेल से कोई डर नहीं है, मौत बहुत करीब से मैंने देखी है और अब मेरे सारे डर जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने इस वक्त ये बात भी की कि अदलिया और वकला बिरादरी से मैं मुखातिब हूँ, अल्लाह ने आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, जिस तरफ ये लेकर जा रहे हैं मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं होना। और इमरान खान साहब ने ये बात की कि फवाद चौधरी को क्यों गिरफ्तार किया गया, उसने ऐसा कौन सा जुर्म किया। किसी जमहूरियत में ये जुर्म होता है कि आप किसी इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर तनकीद करें और वो अगले को बुरी लग जाए। आजम सवाती का क्या कसूर था और शहबाज गिल, अरशद शरीफ के साथ क्या किया गया सबको पता है। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने ये बात की कि अरशद शरीफ जैसा दयानतदार और मुहिब वतन साफी तो कोई हो ही नहीं सकता पूरे पाकिस्तान में। इसमें इमरान खान साहब ने ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे बता दी, मैं यकीन दिलाता हूं कि मुझे जेल से कोई डर नहीं है और जब अल्लाह का फैसला होगा, टाइम ना आगे होगा ना पीछे, मुझे मौत भी आ जाएगी, मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है और मुझे जेल लेकर जाने लगे हैं इसकी कोई फिक्र नहीं। आपको भी जेल से डरना नहीं चाहिए, कितनों को ये जेल में डालेंगे। और ये वही बात है कि हाकिम शहर सजा सोच के चुप बैठा है, सारी बस्ती को वो बस्ती से निकाले कैसे, क्योंकि अवाम जो है इस वक्त जारी बात है आपको भी पता है किस तरह से इमरान खान के साथ है और तमाम तर चीज़ें। अब यहाँ पर इमरान खान साहब ने ये बात भी कही कि मुशर्रफ मार्शल लॉ में भी मुझे जेल में डाला गया, लेकिन ऐसे हालात मैंने कभी नहीं देखे और मैं जेल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ। तो इमरान खान साहब जो हैं वो इस चीज़ को सोच के बैठे हुए हैं और वो किसी भी सूरत इससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और वो कह रहे हैं आओ मेरी गिरफ्तारी कर लो अगर करनी है, मुझे जेल से डराया जा रहा है, मैं जेल से तो नहीं डरता। तो ये सारी अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। इंशाल्लाह आपको लम्हा व लम्हा फील्ड से अपडेट करते रहेंगे, ज़मान पार्क से भी और बाकी जगहों से भी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।